of them as well. Sorry, I will leave the pages directly and delete that. Okay. And I will go in app.jsx and clear app.jsx, RAFCE, and will write here app component. Okay. So let's start the recording of today's class, and today is going to be the last recording of our class. Today we are recording our lecture last time because onwards tomorrow हम क्या करेंगे, 3 दिन है हमारे पास रिएक्ट के। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है पिछले क्लासेस में, आपका जो भी डाउट हो उन क्लासेस में पूछ सकते हो, या पूरी रिएक्ट से आपको जो भी कहीं से भी ढूंढ के लाना है कुछ भी पूछ सकते हो। एंड ठीक है, तो अभी बेसिकली हम करने क्या वाले हैं, हम ना 3 कंपोनेंट बनाने वाले हैं। एक बनाएंगे हम लॉगिन पेज का, और एक बनाएंगे हम टू डू कंपोनेंट, सॉरी टू डू पेज। 2 पेजेस बनाने वाले हैं। सो आई विल गो इन पेजेस फोल्डर एंड आई विल क्रिएट 2 पेजेस हियर, to do.jsx, and then in this application we do not require component. Oh my god, I require one component. Let me undo it. So yeah, perfect. No, 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 no. I don't want to do it. So in pages directory, what will I do? Select the pages, and inside pages I will create login.j6, and I will create one more directory, and the name of this directory is what? Let's name it as todo.jsx, and pages कर रहा हूँ मैं close, and I will come here in src directory. I will create 2 more folders here. The first one is for components, and second one is for redux. In our previous class what we did, redux का folder बनाने की जगह we did create one app, right? App name directory. But here we are using the most advanced architecture of react for the front end. तो हमारे SRC में assets है, asset की मुझे भी कोई requirement नहीं है, तो let me delete this one. SRC में components है, pages है, and one and very important, that is redux. And what will I do? I will go first of all in login.jsx page, and before that I will come in components and create one header.jsx over here, and take a react functional component with exported, and inside header here what will I do? I will create one div, and within that div I will place one h2, and here I will give comment so that I will remember. Actually this is not nothing but just the logo of my file, and I will go in main.jsx, where the hell it is. Okay, and I will import main.jsx में मैं रिएक्ट राउटर से एक चीज़ इंपोर्ट करूँगा, रिएक्ट राउटर डॉम से। एंड जो चीज़ मुझे यहाँ से इंपोर्ट करनी है वो मेरे ब्राउज़र को राउटिंग के लिए इनेबल कर देता है, मेरे रिएक्ट एप्लीकेशन को राउटिंग के लिए इनेबल कर देता है। क्या नाम था उस कंपोनेंट का? ब्राउज़र राउटर. सो आई विल एक्सट्रैक्ट ब्राउज़र राउटर आउट ऑफ इट एंड मेक श्योर। कई बार ना हम ऐसे कर सकते हैं कि नाम तो ब्राउज़र राउटर है, ढूंढ इसको रहे हैं, लेकिन इसको हम राउटर ऐसा सिंटैक्स देख सकते हो कि इस पैकेट में से ब्राउज़र राउटर को निकालो, एंड आई एम नेमिंग इट राउटर. सो आई विल कम इनसाइड रेंडर मेथड एंड कट इट, एंड यहाँ पे मैं रेंडर करा दूंगा अपने राउटर को। एंड इसका मतलब ये होता है कि ब्राउज़र राउटर को अपने प्रोजेक्ट में मैं एज ए राउटर यूज़ करूँगा, ठीक है। एंड आई विल प्रोवाइड हेयर ऐप. सो इसके बाद क्या होगा, नाउ आई कैन गो इनसाइड ऐप, एंड ऐप के अंदर मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ अपने हेडर को. इंपोर्ट हेडर. हेडर कहाँ मिलेगा मुझे? करंट डायरेक्टरी में डायरेक्टरी होगी कंपोनेंट्स नाम की, जहाँ पर मुझे हेडर मिल चुका है। एंड इस हेडर को मैं ऐप के अंदर डायरेक्टली ऐसे ही रेंडर करा दूंगा हेडर को. हेडर, yeah, so okay, so it will be like this. And if you go to your, okay, I have not actually run this project. So हमारा प्रोजेक्ट जस्ट रन ही होने वाला है, हो चुका है क्या? या इट इज हियर. इतना टाइम ले रहे हो, लेट मी चेक कोई कंसोल पे कोई दिक्कत तो नहीं है.
and I will check my console on the right side. Yeah, here we have not any trouble yet, but we are facing some trouble in the compilation. I do not know what happened. So yeah, these files are taking some utility classes. Okay, that's not problem. ये हमसे ये बोल रहा है you have imported element CSS but you never used it. मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है. Let me try one more times. I get some serious error is there. Have I written something inside header? Okay, I have not written anything yet. Here I will write hasib dot and save it and refresh it. Okay, everything is working fine. So first of all, what will I do? मैं अपना जो logo है इसको साइज दे दूंगा बड़े खतरनाक लेवल का. So I'll make it text 5 XL 5 गुना बड़ा कर दो. And I will make this component. Why do not I name it as header so that it will become better as is for the purpose of SEO. And इसको मैं flex बोल देता हूँ. Justify between and height of like 96 pixel की and items center. Now if I go to my web page it is coming like this and zoom तो नहीं है ना zoom नहीं है. एंड इसको मैं बोलूँगा भैया तो ना एक काम कर फॉन्ट वेट थोड़ा सा ज़्यादा ले ले. फॉन्ट वेट कर ले सेमी बोल्ड एंड ठीक है. ओके इसको तो मुझे यहाँ से कट करके यहाँ पे रखना था. एंड इसको मैं पेज ही दे देता हूँ ऑरेंज of like 300 and let me go to my web page. Okay, header is coming like this. इस तरफ मुझे एक navigation bar चाहिए इसके just बाद and I will place a navigation bar and within that navigation bar I require 2 li items. The first one is for to do and why do I require li item? मुझे link चाहिए ना तो I will import it from here React router DOM. ओके एंड यहाँ से मुझे ये मिल जाएगा. क्या नाम है इसका लिंक. ठीक है कॉपी किया एंड लेट्स सेव इट हियर. तो मैंने कहा कि यार हमारे पास एक लिंक है. पहला वाला वो है लॉगिन पेज के लिए एंड दूसरा वाला है टू पेज के लिए एंड इसका पाथ है. अच्छा हम मान लेंगे जो टू डायरेक्टरी है ना वो लॉगिन का पेज है एंड हम चाहेंगे क्या कोई यूज़र तभी टू डू लिस्ट क्रिएट कर सके जब वो हमारे इस वेब पेज पे लॉगिन कर चुका हो. टू डू वाले के लिए हम टू डू वाले पाथ पे भेज देंगे उसे वंस ही हैज लॉग्ड इन. एंड या वी हैव रिफ्रेश्ड द वेब पेज एंड जो हमारा हेडर है मेन वाला इसको हम बोल देंगे पैडिंग ले लेगा px x डायरेक्शन में 40 पिक्सल की पैडिंग ले लेगा. ओके इट हैज़ कम नाउ एंड जो नेविगेशन बार है लेट्स मेक इट फ्लेक्स एज वेल. क्या दे देते हैं 20 पिक्सल का दोनों एलिमेंट्स के बीच में. एंड मुझे ना यहाँ पर एक बटन और रखना है. आई नीड टू प्लेस वन बटन हियर एज वेल जो क्या करेगा लॉक आउट कर देगा हमें हमारे यूज़र को. ठीक है एंड टू डू एंड व्हाट विल आई डू. ठीक है नॉट अ प्रॉब्लम एंड कूल. सो वी आर गेटिंग हेडर लाइक दिस. इस पे क्लिक करें आ रहे हैं टू डू पे क्लिक करें टू डू वाले पेज पे जा रहे हैं but we have not created routes yet. तो हम पेजेस लॉगिन बना चुके हैं क्या RAFCE और यहाँ पे हम लिख देंगे लॉगिन पेज सेव इट हियर एंड टू डू डॉट JSX में हम बोलेंगे अरे यार क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम बोल देंगे RAFCE आ जाओ भाई RAFCE. यहाँ पर हम बोल देंगे टू डू पेज सेव किया. And now we will go in app.jsx and import both the pages. पहले वाले का नाम था to from current directory में pages नाम का फोल्डर है. यहाँ पे हमें to मिल जाएगा. और पिछले क्लास की रिकॉर्डिंग देख के प्रैक्टिस नहीं की है तो समझ नहीं आने वाला आपको आज कुछ भी क्योंकि थोड़ा सा खतरनाक लेवल पे लेके जाएंगे आज हम चीज़ों को. यहाँ पर बोल देंगे वाले रूट का पाथ है स्लैश पाथ होगा तो हम एलिमेंट में दिखा देंगे. एलिमेंट क्या दिखाना है यहाँ पे हम बोल देंगे कि यार अगर ऐसा कुछ है तो भैया तुम ना लॉगिन पेज को रेंडर करा देना इस प्लेस पे. कुछ तो दिक्कत है. अच्छा हमने रूट्स वाला पेज रखा नहीं
इंपोर्ट करना है इन दो चीज़ों को फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉट, क्या नाम है चीज़ों का, रूट्स और रूट्स को कॉपी किया एंड पेस्ट इट हियर, अनरैप किया एंड ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है ये तो ठीक हो गया, इन इसको क्या हो गया, ओके एंड परफेक्ट, इसी को कॉपी करेंगे नीचे, इसी के साथ साथ हमारा एक टू डू वाला पेज आ चुका है, वो आएगा इस लिंक पे, सेव किया एंड अब चलो चल के देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लॉगिन पे क्लिक किया तो लॉगिन पेज पे आ गए, टू डू पे क्लिक किया तो टू डू पेज पे आ गए। नाउ वी वांट टू क्रिएट सम फंक्शनैलिटी इन लॉगिन पेज, व्हाट डू वी वांट टू डू, सी हम चाहते हैं हमारे पास ना एक अब रिडक्स का रूल देखते हैं, रिडक्स का क्या है, जैसे हमारा ना लॉगिन पेज है, लॉगिन पेज में ना कुछ फंक्शनैलिटी है, जैसे हम लॉगिन से यूज़र का डेटा लॉगिन करवाएंगे, यूज़र से यूज़र का डेटा लॉगिन करवाएंगे, उसको ना हम इस हेडर में भी यूज़ करेंगे, इस हेडर के साथ साथ हम उसको टू डू वाले पेज पे भी यूज़ करेंगे। हम ये देखेंगे अगर टू डू वाले पेज पे जो हमारा हेडर है, अगर उसमें यूज़र लॉगिन नहीं है तो हम यूज़र को ना उस पेज पे रहने ही नहीं देंगे, हम यूज़र को बोलेंगे भाई तू यहाँ पे रह ही नहीं सकता, तू एक काम कर पहले लॉगिन कर जाके। ये काम हम कैसे करेंगे अभी देखते हैं, इसके लिए हम रिडक्स टूल किट में आते हैं, रिडक्स में आके पहले तो मुझे यहाँ पे बनाना है एक स्टोर अपना, स्टोर डॉट जे एस, स्टोर कैसे कॉन्फ़िगर करता हूँ, सिंपल है, क्या नाम था उस फंक्शन का जो कॉन्फ़िगर करता है स्टोर, कॉन्फ़िगर स्टोर कहाँ पे मिलेगा मुझे, रिडक्स, रिएक्ट रिडक्स में है ना, रिएक्ट हाइफन रिडक्स में कहाँ मिलेगा, रिएक्ट हाइफन कहाँ पर, रिएक्ट हाइफन, बहुत बढ़िया, क्या तुम लोग करोगे जीवन में है, ये मुझे मिलेगा इस रिडक्स टूल किट में, ठीक है, तो कॉन्फ़िगर कर लेते हैं स्टोर को, कॉन्फ़िगर स्टोर कर लेते हैं एंड हियर वी हैव पास्ड एन ऑब्जेक्ट ओनली, सो या वी हैव क्रिएटेड आवर स्टोर एंड देन हमारा जो एप्लीकेशन है, पहले हमने क्या करा था, ऐप नाम दे दिया था फोल्डर का, बट आज हमने क्या बोला, रिडक्स नाम होगा हमारे फोल्डर का, जहाँ पे हमारे एप्लीकेशन का इंटायर स्टोर होगा एंड व्हाट विल वी डू, as make sure as user tries to log it in, हम यहाँ पे डेटा को सेव कराएंगे ताकि इस डेटा को हम अपने इंटायर प्रोजेक्ट पे यूज कर सकें। तो रिडक्स के अंदर मैं कुछ फीचर बना रहा हूँ, रिडक्स के अंदर सबसे पहले ध्यान रखना, रिडक्स के अंदर मैं एक फीचर नाम का फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, रिडक्स के अंदर फीचर्स नाम का फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ एंड फीचर्स के अंदर पहला जो फीचर होगा वो किस लिए होगा, ऑथेंटिकेशन, सॉरी एक और फोल्डर बना हुआ है इसके अंदर में, फीचर्स के अंदर पहला जो फोल्डर होगा लेट्स नेम इट ऑथेंटिकेशन और ऑथ मतलब ऑथेंटिकेशन, बहुत बढ़िया, और फीचर्स के अंदर एक और फोल्डर बनाएंगे, ये किस लिए होगा, टू डूज के लिए, ठीक है, तो ऑथ वाला जो फोल्डर है इसके अंदर हम क्या बनाएंगे, ऑथ स्लाइस डॉट जे एस, इफ यू रिमेंबर स्लाइसिस क्या होते थे, अरे सर रिड्यूसर फंक्शन ही तो होते थे हमारे पास, ठीक है, टू डू की भी एक स्लाइस बना लेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू डू स्लाइस डॉट जे एस, बहुत बढ़िया, सबसे पहले हम ऑथ स्लाइस को तैयार कर लेते हैं, हमने कहा वी विल इंपोर्ट वन फंक्शन फ्रॉम वेयर, फ्रॉम रिएक्ट हाइफन रिडक्स, कौन सा फंक्शन होता है वो, हाँ क्रिएट स्लाइस कहाँ मिलेगा, रिएक्ट हाइफन रिडक्स में है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये हमें मिलेगा टूल किट में और द नेम ऑफ द फंक्शन इज क्रिएट क्रिएट स्लाइस, क्रिएट स्लाइस, परफेक्ट एंड कॉन्स्ट, हम बोल देंगे भैया ये वाला जो स्लाइस है ना, ये ऑथ स्लाइस के लिए बना रहे हैं, ये स्लाइसेस हैं ऑथेंटिकेशन के लिए, हम क्रिएट स्लाइस फंक्शन को कॉल कर देते हैं एंड बहुत बढ़िया, फिर हम बोलेंगे नेम इज इक्वल टू, नेम क्या होगा इसका, ऑथेंटिकेशन के लिए बना रहे हैं तो ऑथ नाम रख देते हैं, इनिशियल स्टेट एंड इनिशियल स्टेट का भी नल ऑब्जेक्ट रखता हूँ एंड रिड्यूसर्स का एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हमारे सारे फंक्शंस होंगे रिड्यूसर्स, तो इसके अंदर रिड्यूसर क्या क्या होने वाले हैं, देखो मेक श्योर रिडक्स का जो आर्किटेक्चर है इसको ध्यान रखना, रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगा, दो तीन दिन जितना टाइम आपको लग रहा है देखना, सारे स्टेप्स फॉलो करने, यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि दो को तो ऐड करने में चार आ रहा है हम काउंट कर रहे हैं, बस स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, दिस इज इंडस्ट्रीज स्टैंडर्ड, यू नीड टू फॉलो या फिर रिमेंबर दैम, तो
ऑथ स्लाइस के बाद यहाँ पे मेक श्योर हमारे पास ना दो फंक्शन होंगे। यहाँ पे एक फंक्शन होगा कौन सा, लॉग इन करने वाला, right? So first function we will be having here that user can log in, and the second function we can create here for let me copy this one and paste it here. So user can log out from here as well. Okay, user यहाँ पे क्या कर सकता है भैया, लॉग इन कर सकता है और लॉग आउट कर सकता है। अब कई बार क्या होता है, वैसे अभी तो हमारे पास सिर्फ दो फंक्शंस है, बट इंडस्ट्रीज में क्या होता है, हमारा जो ग्लोबल स्लाइसेस होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े और बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो हम इसी फोल्डर के अंदर एक फंक्शन बना, एक पेज बना लेते हैं एक्शन डॉट जेएस का। इस एक्शन डॉट जेएस में हम पता है क्या करते हैं, हम यहाँ पे आके बोलते हैं कॉन्स्ट एक्शन इज इक्वल टू व्हाट, यू नो व्हाट इज एक्शन इक्वल टू, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ना रिड्यूसर्स में जो रखा है, इसी को मैं कट करके यहाँ पे लिख दूंगा और मैं बोलूंगा एक्शन डॉट जेएस इज इक्वल टू दिस। इज इट क्लियर सो फार? अब मैं क्या बोलूंगा, ये जो एक्शन है ना, इसको यहाँ से क्या कर दो, एक्सपोर्ट कर दो डिफॉल्ट एक्शन। दिस इज वन ऑफ द वे, रिकॉर्डिंग में ये भी मिल जाएगा आपको, टेक अ नोट ऑफ, टेक वेरी ब्यूटीफुल नोट ऑफ इट, बट सम ऑफ द प्लेसेस यू विल फाइंड आउट दैट हम ना यहाँ पे डायरेक्ट इसको ऐसे बोल देंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर दो डिफॉल्टली, ठीक है? एक्सपोर्ट कर दिया डिफॉल्ट में किसको, इस ऑब्जेक्ट को, और इसको हम ऑथ स्लाइस के अंदर ले आएंगे, हम करेंगे इंपोर्ट and make sure, sir, this is what, these are what, sir, these are the actions that user can perform on my web page application. That is why we call it action, and we can import it from the current directory from action file, and we will paste it here and in, yeah, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, that's not a problem, that is completely fine. No, make sure here you can name anything. अगर आपने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया है ना, यू कैन नेम हियर एनीथिंग, यू कैन नेम इट लाइक आकांक्षा, आप इसका नाम आकांक्षा रख सकते हो, अंशिता रख सकते हो, अक्षिता, एनीथिंग यू वांट, राइट? एंड इस एक्शन को देखो, दो चीजें यहाँ पे क्या क्या है, एक लॉग इन फंक्शन है, एक लॉग आउट है, अभी के लिए वॉइड है वो, उसको हमने यहाँ पर रख दिया। और जब बहुत ज्यादा स्टेट्स होते हैं ना हमारे पास, तो हम स्टेट को भी यहाँ पे ना रखे, हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं const initial state is equal to kind of this, and इस स्टेट में हम क्या बोलेंगे कि यूजर नेम is null, as of now user name is null and the password of the user is null as well, एंड हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करके यहाँ पर बस पेस्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, आपका जो स्लाइस है ना, दैट इज वेरी नीट एंड वेरी क्लीन। दिस इज द वे हाउ यू ऑर्गेनाइज योर कोड इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे। एंड सेम काम मैं रिपीट करूंगा इसके लिए, टू डू स्लाइस के लिए जाके। सो आई विल कम इन टू डू स्लाइस, एंड क्योंकि मेरे स्लाइस लगभग दोनों सेम होने वाले हैं, आई विल जस्ट कॉपी इट एंड गो एंड पेस्ट इट हियर। बस मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, जो मेरे स्लाइस का नाम है, द नेम ऑफ द स्लाइस इज टू डू स्लाइस, एंड मेरे स्लाइस में क्या होगा, सिर्फ एक एरे होगा जिसका नाम होगा टू डूज करके हमारे पास एक एरे होगा, दैट विल बी नल इनिशियली, कोई भी लाइक स्लाइड टू डू आइटम है नहीं हमारे पास। एंड व्हाट एल्स वी विल बी हैविंग हियर, लेट्स सी। पहली बात तो इसका नाम अब टू डूज हो जाएगा, एंड इनिशियल स्टेट इसका क्या होगा, ये आ चुका है एक्शन। चलिए इसके लिए एक एक्शन वाली फाइल बनाते हैं, सेम एज इट इज। पहले मैं इसको कॉपी करके ले आता हूँ यहाँ पे, एंड मैं बोलूँगा टू डू के अंदर भी एक एक्शन डॉट जेएस क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे लेट्स पेस्ट इट हियर, एंड एक्शन में देखो, टू डू के अंदर हम क्या करते हैं, कर सकते हैं, फंक्शनलिटी क्या होगी, ऐड टू डू, है ना, और रिमूव टू डू, और एक होगा कि पूरी की पूरी टू डू लिस्ट को डिलीट करना है, डिलीट टू डू। रिमूव टू डू मतलब सिंगल एलिमेंट, डिलीट टू डू मतलब पूरी को डिलीट कर देंगे। सो वी हैव डन इट वेरी डिसेंटली, सो वी हैव क्रिएटेड बोथ द स्लाइसेस। बट अब बात आती है कि सर रिडक्स टूलकिट में ना स्टोर तो हमारे पास सिर्फ एक है, स्टोर कितने हैं सर? सर एक है। तो उस स्टोर में यहाँ पे मैं रिड्यूसर में अब इसको रोक दो, इसको रोक दो, इधर आओ। हमने कहा इंपोर्ट कर लेते हैं तो, अरे यार एक गड़बड़ हो गई। जो फीचर्स है ना, ऑफ स्लाइस में भी जाके, सॉरी एक्शन में नहीं, ऑफ स्लाइस में जाके, हाँ यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे एक्सपोर्ट कर दो डिफॉल्ट में, किसको करना है, ऑथ स्लाइस के रिड्यूसर को, ठीक है। अरे बाप रे, रिड्यूसर को, लेट मी सेव दिस वन एंड कॉपी इट फ्रॉम हियर,
and come in to do slice and let's paste it here. But auth slice की जगह we will make it to do slice. Yeah, we have done that and we will close it. अब स्टोर में पहले तो दोनों को इंपोर्ट कर लेते हैं, auth slice के रिड्यूसर को भी फ्रॉम कहाँ से, करंट डायरेक्टरी में करंट डायरेक्टरी में फीचर्स नाम का फोल्डर है, वहाँ पे auth नाम का फोल्डर है, वहाँ पे auth slice रखा है, ठीक है। इसी तरह मैं कॉपी कर लूँगा किसको, auth की जगह टू डू के अंदर टू डू स्लाइस रखा है, ठीक है। इसका नाम मैं रख दूंगा टू डू स्लाइस रिड्यूसर। अच्छा एक चीज बताओ मेरे को यार, ये जो टू डू स्लाइस रिड्यूसर है या ऑथ स्लाइस रिड्यूसर है, इतना नाम यहाँ पे तो हम कुछ भी नाम रख सकते हैं ये वाला, क्योंकि डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है, तो इतना बड़ा नाम क्यों दिया? मीनिंगफुल है, लेकिन हमें पता है ऑथ के अंदर से रिड्यूसर आ रहा है, तो लेट्स मेक इट ऑथ रिड्यूसर एंड यहाँ पे लेट्स मेक इट टू डू रिड्यूसर। एंड यहाँ पर हम आएंगे, अब हम बोलेंगे रिड्यूसर इज इक्वल टू ऑथ रिड्यूसर। सर ऑथ दे रहा हूँ सर, इफ आई एम गिविंग इट ऑथ तो टू डू छूट रहा, टू डू दे रहा हूँ तो ऑथ छूट रहा, तो हम क्या करेंगे, वी विल बैकस्पेस हम बोलेंगे एक ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट में ऑथ के लिए हमने रख दिया ऑथ रिड्यूसर को। अब यहाँ पे कुछ भी नाम हो सकता था इनका, यू नीड टू फॉलो इट। टू डू के लिए नाम दे रहे हैं टू डू रिड्यूसर को, perfect। So we have done that. Now the last thing that is remaining, you need to export this store from here. And currently what I'm just going to do, मैं अपने auth slice में जाके ना यूजर नेम बोल देता हूँ हासिफ एंड पासवर्ड बोल देता हूँ 1 2 3 4 5। I will just try to access it and try to show कि यार क्या मैं इसको प्रिंट कर पा रहा हूँ, एक्सेस कर पा रहा हूँ, यानी मतलब मेरा स्टोर सही से कॉन्फ़िगर हुआ या नहीं। सो रिडक्स का काम कंप्लीट हो गया, आई जस्ट रैप्ड इट। बहुत सारी फाइल्स हैं, आराम से खोलो, आराम से रैप कर दो, रैप्ड इट एंड रैप्ड इट एज वेल। Now we need to work upon this app.j6. Not in here app.j6. What will we do? We will be coming here in main.j6. हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि हमें ना import करना है provider फ्रॉम रिएक्ट, और रिडक्स में से हमें एक प्रोवाइडर मिलेगा, उसको हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है। सो वी विल से प्रोवाइडर चाहिए। कई बार हम इसको ऐसे यहाँ पे भी देख सकते हैं, कॉपी किया एंड यहाँ पे हम रख देंगे अपने प्रोवाइडर को, कट किया एंड ऐप को पैक कर दिया, मतलब कॉन्टैक्ट अपने रिड्यूसर को, अपने रिडक्स के स्टोर को हम पूरे एप्लीकेशन में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। बट वी हैव नॉट प्रोवाइडेड द स्टोर येट, तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे भैया, इंपोर्ट कर लेंगे स्टोर को। बट स्टोर को एक्सपोर्ट करा है क्या हमने? Yes, we have done that, but make sure this one is not default. So in this case what will we need to do? We will need to write something like this। इंपोर्ट करना है स्टोर को, कहाँ से, करंट डायरेक्टरी में रिडक्स है, वहाँ पे स्टोर पड़ा है, बस आ गया। एंड लेट मी कॉपी दिस वन, आई डू नॉट नीड टू राइट इट आई गेस, ठीक है। एंड copying the prop and passed it here, store is equal to store। Yeah, I have done that। Let me check what the problem, okay, nothing at all। And now let me go to my application, do we have any error? No, we have not any error। And we will go in login, where it is login.jsx। what will I do? I will try to check कि login के अंदर जो अपना auth है उसकी चीज़ हम यहाँ पे फाइंड कर पा रहे हैं या नहीं। तो उसके लिए हमें रिएक्ट रिडक्स में से इंपोर्ट करना पड़ेगा इस चीज़ को। द नेम ऑफ दिस चीज़ इज यूज सेलेक्टर हुक। यूज सेलेक्टर हुक क्या करेगा, हमें कॉन्टेक्स्ट में से, अपने रिडक्स में से सेलेक्ट करके दे देगा चीज़ों को। तो मुझे ऑथ से रिलेटेड चीज़ें चाहिए, ऑथ से रिलेटेड चीज़ें चाहिए, तो आई विल से कि ऑथ में ये आ जाएंगी, और यूज सेलेक्टर हुक को कॉल कराते हैं। इसके अंदर पास कर देंगे एक कॉल बैक फंक्शन। इस कॉल बैक फंक्शन में क्या बोलूँगा मैं, स्टोर, कि स्टोर के अंदर क्या क्या रखा है। स्टोर के अंदर जो भी है ना, उससे मुझे रिडक्स को सॉरी स्टोर के अंदर से मुझे ऑथ को एक्सपोर्ट कराना है और ऑथ के अंदर डाल देना है। एंड लेट मी लॉग इट ऑन द कंसोल कि एम आई गेटिंग द वैल्यूज ऑफ ऑथ और नॉट। लेट मी सी what are we getting here। and if I go to my web page, I'm not getting anything। why? Because I'm at a to do page। I will have to go to the login page, and when I am going to the login page I am getting undefined here, means
I must have committed some mistakes in my project. And I will say, oh, okay, 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 okay. See what I have done. मैंने रिटर्न नहीं करवाया इसको, जब रिटर्न नहीं कराया तो अनडिफाइंड रखेगा ऑथ के अंदर, सो आई विल हैव टू राइट रिटर्न, या तो मैं रिटर्न लिखूंगा या फिर ये कर्ली ब्रैकेट्स को हटा दूंगा, रिटर्न कराया। नाउ आई एम गेटिंग माय डेटा, सो आई हैव क्रिएटेड अ ग्लोबल स्टेट विद द हेल्प ऑफ रिडक्स टूलकिट। एंड नाउ व्हाट आई वांट टू डू, मैं लॉगिन में से बोलूंगा यार जो इनिशियल स्टेट है ना, इसको तो तुम ऐसे ही रहने दो जैसे ये था, ये गलती क्यों कर रहे हो इसको। कहाँ गया, फीचर्स में गए, ऑथ में गए, हमने कहा यार ऑथलाइज को ना, ये जो यूज़र नेम है खाली, पासवर्ड खाली, ठीक है, सेव किया, यहाँ पे क्या आ रहा है, यूज़र नेम खाली, पासवर्ड खाली, ठीक है, बढ़िया है। अब हमने कहा हमें ना लॉगिन में इसकी ज़रूरत नहीं है, बट वी ओनली डिड इट टू चेक वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। तो पहले मैं इसको कट कर दूंगा, पहले मैं इसको इसको यहाँ से कट कर दूंगा, गौर से सुनना, मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगा एंड आई विल गो इन माय हेडर फाइल, आई विल गो इन हेडर कंपोनेंट, सी व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू हियर। हेडर में आके मैं इसको एक्सपोर्ट लाइक यूज करूंगा ऑथ को, एंड व्हाई एम आई यूजिंग इट हियर, लेट मी जस्ट टेल यू। एंड मैं ऑथलाइज को तो बंद कर देना, लॉगिन के अंदर से ये वाली चीज़ भी ले आता हूँ, कट किया, हेडर में ले आया, फिर मैंने बोला यार जब ऑथ निकाल लिया है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं बोलूँगा, मैं यहाँ पे बोलूँगा कि इफ auth dot username, if auth dot username not exist, है ना, is triple equal to नल एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब ये फॉल्स ही है, तो इस केस में क्या कर दूंगा, फॉल्स ही को ट्रू ही बनाने के लिए नॉट लगाना पड़ेगा, मतलब जब मेरा यूजर नेम खाली होगा, मतलब यूजर ने अभी लॉगिन नहीं किया है, इस केस में मैं क्या करूंगा, अगर कोई यूजर लॉगिन पेज पे जाने की कोशिश करेगा ना, आई विल चेक यूज नेविगेट हुक, यूज नेविगेट हुक, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ से लिंक रिएक्ट राउटर वाले से यूज नेविगेट हुक एंड कॉपी इट, एंड यहाँ पे मैं बोलूँगा कि यहाँ तो हमने ऑथ निकाला स्टोर से, ऊपर क्या करेंगे, नेविगेशन नेविगेट को निकाल रहे हैं, ताकि कोड क्लीनर रहे, कमेंट ज़रूर ऐड करना, हमने कहा नेविगेट, नेविगेट फंक्शन विल बी रिटर्न फ्रॉम यूज नेविगेट हुक, ठीक है। अब हम क्या बोल देंगे कि अगर यार यूज़र नेम एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इस यूज़र को नेविगेट करा दो, नेविगेट करा दो वेयर, टू द होम पेज, जहाँ पे पहले इस यूज़र को लॉगिन करना पड़ेगा। नाउ लेट मी ट्राई टू सी कि अब हम टू डू वाले पेज पे जा पा रहे हैं क्या। लेट मी रिफ्रेश द पेज, व्हाई आर वी गेटिंग सम ट्रबल हियर, नेविगेशन एरर मैक्सिमम, एक सेकेंड लेट मी चेक, यू शुड कॉल नेविगेट इन a react use effect, ओके, पता नहीं क्या ये हमसे बोल रहे हैं, अच्छा ये हमसे ये बोल रहे हैं अगर आपके पेज पे मल्टीपल वो हुए, क्या कहते हैं इसको, क्या क्या बोलते हैं इसको, किसको सर? यही तो दिक्कत है तुम्हें, अगर रिपोर्ट आपके मल्टीपल स्टेट्स हुए, ठीक है, और किसी एक स्टेट की वैल्यू चेंज हुई तो इस कोड को बार बार थोड़ी रन कराएंगे नेविगेट वाले को, इसको यहाँ से कट करेंगे, यूज इफेक्ट को हुक को निकालेंगे यहाँ से एंड कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे हम ऐसे रख देंगे कि भैया जब इनिशियल टाइम पे एक बारी में जब सबसे पहले रेंडर हो रहा है तब हम चेक करेंगे, कभी ऐसा तो नहीं है, अबे यार जो कट करा था वो गया गया जो कट करा था, इसको भी यहाँ पे ही रहने देते हैं, यहाँ से पहले निकालते हैं यूज इफेक्ट हुक, कॉपी किया एंड पेस्ट हियर, हम ये कोशिश करेंगे बार बार हमारा कंपोनेंट री रेंडर ना हो, सो वी आर हैविंग अ कॉल बैक फंक्शन एंड डिपेंडेंसीज अरे एज अ नल, और इस डिपेंडेंसीज के अरे में हम इसको रख देंगे कि अगर ऐसा है तो भैया ये ऐसा करा दो, एंड नाउ लेट मी रिफ्रेश द पेज, let me refresh the page, what just happened now, my PC is a little bit slower, ठीक है, it is working fine, and I will do one more thing, what will I do, I will say in my author hot slice there is one more thing, is authenticated, is user authenticated, if yes then it will be true, लेकिन अभी नहीं है तो आई एम मेकिंग इट फॉल्स,
एंड मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि ये वाला पता है कब चेंज होगा, जब अब ऑथ के अंदर से इज़ ऑथेंटिकेटेड की वैल्यू चेंज होगी ना, सिर्फ तब ये चेक करेगा कि ऑथेंटिकेटेड ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू हुआ तो रहने देगा यहाँ पे, अगर फॉल्स हुआ तो ये हम इसको कहाँ पे भेज देंगे यूज़र को, लॉगिन वाले पेज पर। And I guess I have written the correct logic till yet. Everything is working fine. And yeah, let me try to go to the to-do page. We are facing some trouble here. यार हम टू डू को एक बार रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर ऐसे टाइप करता हूँ टू डू, एंटर हिट करता हूँ, टू डू पे नहीं आ पा रहे, लेकिन जब हम यहाँ से पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं टू डू पे, तब हम आ पा रहे हैं। तो ये सेम लॉजिक ना मुझे टू डू वाले पेज पे भी जाकर एक बार लिखना पड़ेगा। एनीवेज, कहाँ हैं ये चीज़ें, ये वाली और ये पूरी, ये तीनों चीज़ें यहाँ से कट करके मैं कहाँ पे जाऊँगा, टू डू वाले पेज पर, क्योंकि वो सही प्लेस नहीं था इन सारी चीज़ों को करने का। एंड आई विल गो वन मोर टाइम्स इन हेडर, इन दो चीज़ों को, और इस चीज़ को कॉपी करके आई विल ब्रिंग इट हियर। नाउ लेट मी से एंड ट्राई टू रीच टू डू एनी नंबर ऑफ टाइम। देखो आई एम क्लिकिंग ऑन द टू डू बट आई एम बीइंग रिडायरेक्टेड टू हियर। अगर मैं यहाँ पे अब टू डू क्लिक करूँ तो मेरा एप्लीकेशन सही चल रहा है, टू डू से भी लॉगिन पेज पे जा रहा हूँ, टू डू से भी लॉगिन पेज पे आ रहा हूँ, बस बढ़िया चल रहा है। ये तो मुझे चाहिए था। बस अब मैं जाऊँगा अपने होम वाले फॉर्म, लॉगिन वाले फॉर्म वाले पेज में। हियर आई विल राइट वन div and h2 within it, सॉरी h2 टैग within it, h2 यहाँ पर मैं लिखूँगा लॉगिन, सेव किया। एंड इस जस्ट div के बाद आई विल टेक वन फॉर्म। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ज़रूर हो रहा होगा, अरे थोड़ा सा नहीं सर, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो रिकॉर्डिंग देख के प्रैक्टिस करना। यहाँ पे फॉर्म के अंदर मैं दो फील्ड सेट ले रहा हूँ, दो फील्ड सेट टैग ले रहा हूँ। फील्ड सेट हाँ, दो फील्ड सेट चाहिए मुझे, आ गए, ठीक है। पहले वाला में मुझे किस लिए चाहिए, पहले वाला चाहिए मुझे लेबल, फॉर फॉर लेबल वाला चाहिए पहले मेरे पास, मुझे चाहिए यूज़र नेम के लिए। सेव किया एंड यहाँ पे मैं लिख दूँगा यूज़र नेम कॉलन, इसके बाद एक इनपुट लिख दूँगा मैं, बहुत बढ़िया इनपुट में लिख दूँगा नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम and the id is also equal to username of it, and I will make a copy of it and paste it here. I will write here password and it's making password as well. Copy it here, paste it here, paste it here, paste it here। बहुत बढ़िया, स्पीड सेट की कोई ज़रूरत नहीं, I will keep a button to log in, बहुत बढ़िया। And right now I will just style this web page, login वाले फॉर्म में I am just going to style this web page. Let me reload this web page, so we are getting something like this. First of all, what am I going to do? I will come here and write it something like this कि इसको तो cn text दे दो 3xl का, एंड एम वाई दे दो, वाई डायरेक्शन में मार्जिन दे दो इसको लगभग 40 पिक्सल का टॉप, 40 पिक्सल का बॉटम। एंड इसका टेक्स्ट लिया हो सेंटर के अंदर, लेट मी सेव दिस वन एंड या दिस इज कमिंग लाइक दिस। एंड इसको बीजी दे दो इंडिगो काइंड ऑफ 50, वेरी लाइट इंडिगो कलर चाहिए, और इसको थोड़ी देना ये छी ये क्या कर दिया मैंने ये क्या कर दिया, कट किया, ये तो मुझे इसको देना था बड़े वाले टिप को अपने यहाँ पे देना था, बस सेव किया। एंड वी आर गेटिंग समथिंग लाइक दिस। शायद मैंने फिर से थोड़ी सी गलती कर दी, मुझे ये यहाँ पे भी नहीं देना, ये मुझे पता है कहाँ पे देना, बताता हूँ। इसको कट किया यहाँ से, ये मुझे देना है अपने फॉर्म को, ताकि फॉर्म मेरा अलग से थोड़ा सा दिखे। बहुत बढ़िया, अब मैं फॉर्म को बोलूँगा CSS रियल टाइम पे देखते रहेंगे कि इस प्रॉपर्टी से क्या हो रहा है। मैं अपने फॉर्म टैग में आके बोलूँगा फॉर्म टैग, वो फॉर्म टैग विथ ले ले यार, फिफ्थ ले ले यार 350 पिक्सल्स की, 350 पिक्सल की लेगा तो ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। एंड इसको मैं बोल दूँगा mx, मतलब x डायरेक्शन में मार्जिन ले ले, सो दैट इट विल कम इन द सेंटर ऑफ माई वेब पेज एंड दैट इज लाइक लुकिंग कूल। एंड वेयर इज फॉर्म, ये इसको मैं बोलूँगा empty, सॉरी ये मार्जिन टॉप ले लेगा 10 का, कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्या, ठीक है।
And now we need to style this input text. So first of all I will come in input, see and इनपुट को मैं बोलूँगा थोड़ी देर के लिए ना बीच में ट्रांसपेरेंट करके शांति से बैठ जाना, हिल मत जाना यहाँ से। कॉपी किया, इसको भी किया, दोनों हो चुके हैं ट्रांसपेरेंट, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। एंड बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तो अच्छे नहीं लग रहे यार, हमें पता कैसे लगेगा इनपुट टैग है या नहीं है यहाँ पे, तो हम ट्रांसपेरेंट नहीं करते, हटा देते हैं। सेव किया, या दे आर कमिंग लाइक दिस एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू, लेट्स सी। तो स्टाइल करते हैं फील्ड सेट को। ये फील्ड सेट को क्या मैं ये बोलता हूँ, जो मेरा बड़ा वाला कंटेनर है इसको फ्लेक्स कर दो, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉल कर दो और गैप दे दो सारे एलिमेंट्स के बीच में 20-20 पिक्सल का। सो वी आर गेटिंग समथिंग लाइक दिस। एंड जो बड़ा वाला फॉर्म ही है ना, ये फॉर्म ही है ना, हाँ, फॉर्म को बोल दूंगा चारों डायरेक्शन में 20-20 या 40 पिक्सल का गैप ले ले भाई, चारों डायरेक्शन में, हाँ 40-40 पिक्सल का गैप ले लिया, ओके। And by the way, we have created one very ugly looking form. If you want to like make it better, you can do something like this, make rounded like large, and yeah, we are getting something like this. And we can also like improve our input tag. By the way, my prior objective of today's class is not to make to write a very neat and clean CSS, but the thing I want to achieve is login functionality with the help of Redux toolkit। तो उस पर फोकस करते हैं, ना कि इसको बेटर बनाएं, ठीक है। मुझे चाहिए जैसे मैं इसमें कुछ क्लिक करूँ, इसमें कुछ भी क्लिक करूँ, लॉगिन करूँ, लॉगिन पे क्लिक करूँ तो ये वाली चीज़ें जाके कहाँ पे अपडेट हो जाए, मेरे Redux toolkit के डेटा में। बाद में वो अलग चीज़ है कि Redux से हम इसको वहाँ पे भेजेंगे, क्या कहते हैं, डेटाबेस में, बट एज ऑफ नाउ मैं चाहता हूँ ये Redux toolkit में चले जाए, ठीक है। So let me see. First of all, I will create one state for this web page. अब यहाँ पे क्यों स्टेट बना रहा हूँ, जब ग्लोबल स्टेट बना दिया तो, क्योंकि देखो यहाँ पे जो स्टेट बनाऊंगा वो सिर्फ इस कंपोनेंट का होगा, रिडक्स टूलकिट में जितने भी स्टेट है वो पूरे इंटायर वेब पेज का होगा। तो मैंने इंपोर्ट के यहाँ पे यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट से इंपोर्ट किया यूज स्टेट को एंड कॉपीड इट हियर कॉन्स्ट। यहाँ पर हम बोलेंगे फॉर्म का डेटा, फिर सेट फॉर्म का डेटा इज इक्वल टू यूज स्टेट एंड दैट इज हैविंग अ नल ऑब्जेक्ट। नल ऑब्जेक्ट में क्या होगा, यूज़र नेम हमारा बिगिनिंग में नल है, पासवर्ड भी हमारा स्टार्टिंग में नल है। सो वी हैव डन दैट। एंड अब मेरे फॉर्म में ना आई नीड टू क्रिएट 2 हैंडलर्स, मुझे 2 हैंडलर बनाने, एक बनाना है ऑन चेंज हैंडलर और एक बनाना है मुझे ऑन सबमिट हैंडलर। मतलब जब हम फॉर्म को सबमिट कराएंगे तब क्या होगा, जब हम चेंज कराएंगे, इनपुट चेंज होगा तब क्या होगा। तो दोनों के लिए एक फंक्शन बनाते हैं, कॉपी इट पेस्ट इट हियर। मैंने पोस्ट ये वाला फंक्शन क्या करेगा जी, ठीक है, लेट्स कॉपी इट, कॉपी पेस्ट इट हियर एंड कॉपी पेस्ट इट हियर, ठीक है। इसमें एक इवेंट होगा, ऑन सबमिट हैंडलर में एक इवेंट होगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम यही बोलेंगे, इवेंट जो ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट नेचर है ना, लोड होने का बार बार, प्रिवेंट कर दो डिफ़ॉल्ट नेचर को एंड अलर्ट करा के भी दिखा दो कि फॉर्म सबमिट हुआ है। सेव किया, इसको मैं यहाँ पे पास कर दूँगा अपने फॉर्म में ऑन सबमिट करने पर ऑन सबमिट हैंडलर को पास कर दूँगा। लेट मी सेव दिस वन, लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, फॉर्म सबमिट हुआ है। अरे बाप रे, लॉगिन बटन को थोड़ा सा भी स्टाइल नहीं किया क्या हमने, चलो कर लेते हैं। हमने कहा CN एंड हमने इसको कहा कि पैडिंग हर डायरेक्शन में, तो राउंडेड एक्स्ट्रा लार्ज एक्सेल एंड BG ग्रीन 600। लेट मी see this one, yeah, so this is coming like this and इसको बोलेंगे फॉन्ट बोल्ड टेक्स्ट वाइट। सेव किया, सो या दिस इज आवर लॉगिन बटन, ठीक है। एंड मैंने कहा यार ये जो ग्रीन है ना ज़्यादा सा डार्क हो गया है थोड़ा सा, लेट्स मेक इट 400। या डार्क इज इन दैट वन इज लुकिंग मोर बेटर, बट व्हाट इफ आई मेक इट 500, सो दैट वन इज रियली वेरी डिसेंट। तो पहले तो मुझे ये प्रिंट नहीं कराना जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं, मुझे कराना है फॉर्म डेटा को, ठीक है।
आई विल से कि मुझे फॉर्म का डेटा अपडेट कराना है जब हम इनपुट देंगे, तो इसके लिए हमने एक फंक्शन बनाया ओन चेंज हैंडलर। इसमें एक इवेंट रख देते हैं। इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम द प्रीवियस क्लासेज, अगर मैं कंसोल पे लॉक कराऊँ, देखो कंसोल पे लॉक करा के दिखाऊँ तो मैं दो चीज़ें, एक तो इवेंट का टारगेट कौन सा एलिमेंट पे हुआ है इसका नेम, इवेंट जिस पे टारगेट हुआ है इसका नेम, दूसरा इवेंट जिस एलिमेंट पे हुआ है इसकी वैल्यू। ये दोनों चीज़ अगर मैं आपको प्रिंट करा के दिखाऊँ, देखो यूज़र नेम में कुछ लिख रहा हूँ तो ये लॉक क्यों नहीं हो रहा? ओके एक्चुअली मैंने ऑन चेंज हैंडलर को यहाँ पे पास ही नहीं किया इनपुट के अंदर। जब ऑन चेंज हो, चेंज होने तक on change, I have not passed this function on change handler. Let me copy this one and pass in this input as well. So if I do write something here, then you will find username is coming like this, username is coming like this, and if you write something on password is coming like this. From where this data is coming? This data is coming from this on change handler, on submit handler को भी देखिए। on change handler में event और target और name से पता लग पा रहा है कौन से target element पे target हुआ है, उसकी वैल्यू क्या है। तो हम यहाँ पे बोल देंगे सेट कर दो फॉर्म का डेटा। सेट कर दें फॉर्म का डेटा क्या कि ऑब्जेक्ट जो पहले से फॉर्म का डेटा है ना, जो पहले से फॉर्म का डेटा है वो रख दो, उसके साथ साथ एक ऑब्जेक्ट पास करना है। इस ऑब्जेक्ट में क्या रखना है? एक सेकेंड, आपको बोलूँगा पोस्ट नेम इज इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम, पोस्ट वैल्यू इज इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सो वी विल राइट समथिंग लाइक दिस कि भैया जिस एलिमेंट पे नाम हुआ ये है और इसकी वैल्यू ये सेट कर दो। इस कोड से क्या होगा इस कोड से? देखो ये होगा इस कोड से, we have not committed any mistake, and what problem we have here, name is equal to this name, let me check, expected, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। कोई एरर दिखा रहा है क्या? एरर तो दिखा रहा है। ओहो, ये दोबारा क्यों रखा मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट का बाहर रखा तो है। यहाँ पे ऐसे ये रखेंगे नेम और नेम की वैल्यू होगी वैल्यू, ये नेम है और ये वैल्यू है, ठीक है। लेट मी गो टू द वेब पेज एंड यू विल फाइंड that if I log the form data onto my console, then you will find that initially it is null, लेकिन जैसे यूज़र में कुछ लिख रहा हूँ यूज़र नेम में जा रहा है, हैशवर्ड में कुछ लिख रहा हूँ हैशवर्ड के अंदर जा रहा है। So I needed to do this one only। मैं ये बोलूँगा सबमिट करने में हमें पता है क्या करना है। सबमिट करने में हमें ना कॉल कराना है इस वाले फंक्शन को, जो auth slice है इसके अंदर जो ये वाला फंक्शन है लॉगिन वाला, इसको कॉल कराना है। इसमें क्या होगा देखो, इसके अंदर तो एक स्टेट होगा और इसके अंदर एक एक्शन होगा। हम बोलेंगे जो हम यूज़र का डेटा भेज रहे हैं ना वो एक्शन के पेलोड में आएगा, तो हम बोलेंगे स्टेट का यूज़र नेम, स्टेट का यूज़र नेम इज इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड में जो यूज़र नेम आया है वो, एंड स्टेट का पासवर्ड इज इक्वल टू एक्शन डॉट पे लोड डॉट पासवर्ड इज इक्वल टू दिस, एंड हम बोलेंगे स्टेट में इज ऑथेंटिकेटेड यस, यूजर इज ऑथेंटिकेटेड नाउ बिकॉज ही हैज जस्ट लॉग्ड इट इन। ओके, सेव किया एंड वी विल कम हियर इन दिस फंक्शन। तो अब हमें इंपोर्ट करना पड़ेंगे एक्शंस। अरे यार, टू डू स्लाइस से हमने और स्लाइस से हमने एक्शंस को तो एक्सपोर्ट करा नहीं, तो हम बोलेंगे एक्सपोर्ट कर देते हैं कॉन्स्ट इन दो फंक्शन को कहाँ से करना है जी? और स्लाइस के एक्शंस में, और स्लाइस के एक्शंस में हमें दोनों फंक्शन मिलेंगे। पहले वाले का नाम है लॉगिन, दूसरे वाले का नाम है लॉगआउट एंड सी। ये दो फंक्शंस थे हमने पास कर दिए। अब देखते हैं ज़रा लॉगिन फंक्शन को यहाँ पे यूज़ कैसे करना है। हम बोलेंगे इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट कर लो किसको? यूज़ सेलेक्टर हुक को ना, यूज़ डिस्पैच हुक को, ठीक है। फ्रॉम रिएक्ट हाइफन रिडक्स, तो हम यहाँ पे डिस्पैच फंक्शन को निकाल लेते हैं, डिस्पैच फंक्शन को निकाल लेते हैं। हम बोलेंगे कॉन्स्ट डिस्पैच इज इक्वल टू यूज़
डिस्पैच, और इसके अंदर बहुत बढ़िया डिस्पैच आ गया। हम कॉल कराएंगे डिस्पैच फंक्शन को सबमिट करने पे। ठीक है, हम बोलेंगे डिस्पैच फंक्शन को कॉल करा दो लॉगिन फंक्शन के साथ। लॉगिन हमें कहाँ मिलेगा, लॉगिन भी लाना पड़ेगा ना। तो हम बोलेंगे इंपोर्ट कर लो लॉगिन को कहाँ से, फ्रॉम वन डायरेक्टरी बैक देयर इज़ अ डायरेक्टरी रिडक्स जिसमें फीचर्स हैं, फीचर्स में ऑथ है, ऑथ के अंदर ऑथ स्लाइस है, जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा, एक लॉगिन मिलेगा और एक लॉग आउट मिलेगा। ठीक है, मैं कॉपी करूँगा लॉगिन को यहाँ पे कॉल करा दूँगा इसके साथ। ठीक है, एंड बढ़िया, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो मैं ये बोलूँगा ठीक है, चलो एक बार चेक कर लेते हैं कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। सेव किया एंड आई गेस वी हैव कमिटेड सम मिस्टेक। यूज स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड वेयर वी हैव नॉट डिफाइंड यूज स्टेट। अच्छा, यहाँ पे यूज स्टेट वाला लिंक शायद हट गया। इंपोर्ट कर लो यूज स्टेट को फ्रॉम रिएक्ट। सेव किया, लेट मी रिफ्रेश, द वेब पेज हैज़ कम नाउ एंड मेक श्योर एक ना डेवलपर्स टूल होती है, इसका नाम है ये वाली, सॉरी एक सेकेंड, क्या नाम है अपने लॉगिन का। तो यहाँ पे दिखा रहा है अपने पास दो स्टेट हैं। एक है स्टेट में एक तो पासवर्ड है नल और यूज़र नेम है नल। जैसे जैसे मैं कुछ एंटर कर रहा हूँ, सो अभी पासवर्ड में, यूज़र नेम में तो कुछ आया है, पासवर्ड में अब कुछ आ गया है। डिस्पैच है स्टोर, लेकिन स्टोर रिडक्स कॉन्टेक्स्ट है। ये थोड़ा कंफ्यूज लगेगा। अभी मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, something is not right. Properties of username cannot read properties of username, where we are trying to payload dot username. Let me log on the console. ये हमारे एक्शन का पेलोड हमें क्या प्रिंट करा के दे रहा है ना। और सेव किया, एक्शन का पेलोड हमें अनडिफाइंड करा के दे रहा है। लेट मी सी द प्रॉब्लम। लॉगिन में जब हम कॉल कर रहे हैं, एक सेकेंड का है हमारा डिस्पैच लॉग। ओके, लॉगिन के अंदर हमने फॉर्म डेटा को रखा नहीं था। सेव कर दें, अब ज़रा चेक करो, लॉगिन पे क्लिक करो। सो वी आर गेटिंग दिस एंड ये हमें कहाँ पे मिला, एक और ये लाइक टूल है, इसको हम बोलते हैं रिडक्स डेवलपर्स का टूल है। देखो, ऑथ लॉगिन पे कुछ काम हुआ है। क्या हुआ है, यूज़र नेम की वैल्यू ये सेट कर दी ASDF, पासवर्ड की वैल्यू ये कर दी। ये पहले यूज़र फॉल्स था, क्या इज़ ऑथेंटिकेटेड फॉल्स है, इसे ट्रू कर दिया। फिर मैं दोबारा आपकी बात चेंज करता हूँ। मैंने कहा नाम है मेरा सलमान खान, यहाँ पे पासवर्ड रखता हूँ मैं 1 2 3 4 5। लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, देखना पहले क्या था। देखो कौन सा डिस्पैच फंक्शन कॉल हुआ है, ऑथ के अंदर लॉगिन वाला फंक्शन। आप इसमें जाओगे तो इस टाइम पे क्या हुआ था वो दिखा देगा, इस पे जाओगे तो ये बता देगा कि पहले नाम ASDF था, नाम सलमान खान हो गया, पासवर्ड ये था, ये हो गया। या आप एक्सटेंशन टूल पे जाके रिडक्स को डाउनलोड कर लेना, बड़े ईजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। एंड लॉगिन करना तो हम सीख गए। अब हमें क्या चाहिए, जैसे यूज़र लॉगिन कर पा रहा है ना, तो हेडर में जाएंगे जी, हेडर में जाएंगे। ये चीज़ करके जल्दी से क्लास को समाप्त कर देते हैं आज की। जो टू डू में हमने ये निकाला है ना, नेविगेट हो गया, यूज़ सेलेक्टर हो गया, इसको मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ पर हेडर के अंदर मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा कि हम ना ऑथ निकालें। यूज़ सेलेक्टर यहाँ पे ऑलरेडी वी हैड, मज़ा आ गया। हम बोलेंगे कि ऑथ सेलेक्टर, जहाँ पे मैंने ये लिखा है ना लॉगिन वाला पेज, इस लॉगिन वाला लिंक, इसको मैं कट करूँगा यहाँ से। यहाँ पे मैं बोलूँगा इफ़ ऑथ डॉट इज़ ऑथेंटिकेटेड, इफ़ इट इज़ ट्रू, इफ़ दिस इज़ ट्रू, इज़ ऑथेंटिकेटेड ही नाम है ना इसका। यहाँ पे देखो, सॉरी वी हैव डन ओके, यहाँ पे इसका नाम है इज़ ऑथेंटिकेटेड। लेट्स कॉपी फ्रॉम हियर, लेट्स पेस्ट इट हियर। या अगर इज़ ऑथेंटिकेटेड ट्रू है ना, मतलब यूज़र ट्रू लॉगिन हो चुका है, तो इस केस में हमें क्या करना है, P हमें नाम दिखाना है यूज़र का, कर्ली ब्रैकेट्स की ऑथ डॉट यूज़र नेम, कि यूज़र का नाम यहाँ पे हमें दिखा देना है ऐसे। और अगर ऐसा नहीं है, टर्नरी ऑपरेटर रखेंगे। और अगर ऐसा नहीं है ना, तो अब हम वो वाला लिंक रखेंगे। कौन सा वाला लिंक था, लिंक टू लॉगिन पेज, लिंक टू
इज इक्वल टू लॉगिन, अरे यार क्या हो गया ये, लिंक टू स्लैश लॉगिन पेज, एंड इसके अंदर हम लिख भी देंगे लॉगिन. लेट मी सेव दिस वन and refresh the page now. As you refresh the page, you will find something like this login. एंड यहाँ पे दिखा रहा है डिडक्स टूल किट का जो ये है कुछ भी नहीं है अभी. फिर मैंने यूज़र नेम में लिखा हाँ सिर्फ पासवर्ड लिखा 1 2 3 4 5. As I hit click on this login button, then what will happen? I have done login. ट्रू आ चुका है एंड यहाँ पे देखना ज़रा नाम क्या आ चुका है. ओ माई गॉड, दैट वाज लाइक रियली अमेजिंग. And now if you try to go on login to do page, now you are able to come here. But what if you just log out from here? लॉग आउट बटन की फंक्शनैलिटी भी तो डिफाइन करनी है. अब इसकी और काम कर लेते हैं. हेडर में आएंगे. हेडर में आके हमें यूज़ डिस्पैच को और यूज़ करना है. डिडक्स आपको स्टार्टिंग में मुश्किल तो लगेगा, बट जैसे जैसे तुमने इसको यूज़ करना सीख लिया भाई साहब एक मज़ा तो देगा ये. यार ये खतरनाक चीज़ भी हम कर सकते हैं. जावास्क्रिप्ट में इसे करने में ऐसी तैसी हो जाती. हम बोलेंगे डिस्पैच करना है यहाँ पे, कहाँ पे, अब हम बोलेंगे हैंडल लॉग आउट. अब हम हैंडल करा रहे हैं लॉग आउट को. पोस्ट हैंडल लॉग आउट इज इक्वल टू दिस ऑब्जेक्ट, दिस फंक्शन, एंड कॉपी इट एंड बोलूँगा बटन पे ऑन क्लिक इवेंट लगा दो. व्हेन यूज़र क्लिक्स ऑन इट हैंडल लॉग आउट चल जाएगा. हैंडल लॉग आउट में हमें कुछ नहीं करना, डिस्पैच करा देना है. डिस्पैच करा देना है किसको? लॉग आउट फंक्शन को. तो लॉग आउट फंक्शन हमें कहाँ मिलेगा जी? एक बोर्ड कर रहे हैं लॉग आउट फंक्शन को, वो हमें कहीं मिलेगा. करंट एक डायरेक्टरी बैक रिडक्स है, वहाँ पे फीचर्स हैं, वहाँ पे ऑथ है, ऑथ के अंदर स्लाइस है. यहाँ से हमें कौन मिलेगा? लॉग आउट मिलेगा. मिल क्यों नहीं रहा? लॉग, ओहो ठीक है. लॉग आउट मेक श्योर हमेशा ऑटो कंप्लीट होने देना. इसे अगर ऑटो कंप्लीट नहीं हो रहा तो यहाँ पे आप अपने एरर कैच कर लोगे. लॉग आउट कराना है डिस्पैच के अंदर. लॉग आउट फंक्शन को कॉल करा एंड लॉग आउट में हम क्या बोलेंगे? लॉग आउट को आगे डिफाइन करते हैं. लॉग आउट में हमें कुछ नहीं करना, इन तीनों लाइन को कॉपी करना है. इसको पहले तो मैं यहाँ से हटा दूँ, अब प्रिंट नहीं कराना है. इन तीनों लाइन को आपने कॉपी करना है ना, इनको यहाँ पे पेस्ट करना है. आप क्या बोल दोगे? लॉग आउट हो चुका है तो ऑथेंटिकेटेड नहीं है. यूज़र नेम में क्या डाल दोगे? दोबारा नल स्ट्रिंग. एंड पासवर्ड में क्या डाल दोगे? दोबारा नल स्ट्रिंग. बस ये हैव डन दैट एंड या वी आर गेटिंग इट लाइक दिस. रिफ्रेश किया. सो वी लेट्स ट्राई टू गो ऑन टू द टू डू पेज. देखो नहीं जा पा रहे हैं. लॉग इन कर लेते हैं एक बार. मैंने कहा नाम है लेट्स कोड विद Asif. ठीक है. पासवर्ड है 1 2 3 4 5. And as I click on the login button, so my username is here. And now, if you try to go onto the login button or to the page, now you are watching that we can come here. And as I click on the logout button, then what will happen? Logout करने पे चला नहीं. Let me see what just happened. Let me check the console. State is not defined. Where have I used it? Okay. मुझे यहाँ पे एक बार स्टेट लिखना पड़ेगा, यहाँ पर एक बार एक्शन लिखना पड़ेगा. तो 12 पेज रिफ्रेश हुआ है तो वो उड़ गया होगा. मैंने कहा लेट्स कोड विद हासिल 1 2 3 4 5 लॉगिन. वी हैव डन द लॉगिन एंड डिडक्स टूल किट दिखा दे भाई क्या किया है हमने. लॉगिन कर चुके हैं. यहाँ पे क्यों नहीं आ रही है? कोई नहीं, लॉगिन हो चुका है. एंड व्हेन यू क्लिक फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द टू डू पेज. यू हैव कम हियर. एक सेकेंड, let me open it from here. Yeah, login हो चुका है. But when you click on logout button, then what will happen? You have logged out. जैसे ही आप लॉग आउट कर चुके हो तो टू डू वाले पेज पर नहीं रह सकते. अच्छा, आपको एक चीज़ करनी है. अब डेटाबेस में तो डेटा भेज नहीं सकते आप, तो रिफ्रेश करने में पेज रिफ्रेश होगा, लेकिन हम इस डेटा को परसिस्टेंट बना सकते हैं. परसिस्टेंट मतलब यहाँ पर ये एप्लीकेशन ये एप्लीकेशन में क्या होगा? आप देखोगे स्टोरेज होती है ब्राउज़र के अंदर. एक लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज या फिर कुकी स्टोरेज. तो इन तीनों में से किसी भी एक स्टोरेज को यूज़ करके डेटा को पहले वहाँ पे सेव कराओ, वहाँ से फैच कराओ, ताकि रिफ्रेश करें तो वो डेटा यहाँ पे ना आ जाए. सो दिस इज़ योर असाइनमेंट फॉर टुमारोज क्लास.